Good morning, students. Welcome to your TSN English class. This is your chapter 3, Deep Water, from your book Flamingo, and this is the third video of this chapter. So, before starting with this video, I would like to tell you about the previous paragraphs. In previous paragraphs or in previous videos, we have read that author, Mr. William Douglas, he's afraid of, or he's having a fear in his mind with water, because when he was his father in California beach, the waves buried him, and due to that incident there is a fear in his mind that water, somehow he's afraid of water. So one day what happened, he tried to overcome his fear with what, that he wanted to learn swimming. And after that, what happened, when he tried to overcome or control over his fear, he joined some classes in Yakima YMCA. But in those classes, there is a boy, 18-year-old boy. When he sat down near the pool, the boy pulled him in the boy took him in his shoulders, and he just tossed him in the water. And due to that, what happened, he's again and into the deep end of the water, and due to that he swallowed, because he landed in water in sitting position, so he swallowed the water and went at once in the bottom. And after that he was like in more frightened situation. So he tried to just make a jump and came to the surface and decided to lie flat and paddle to the edge of the pool, but it won't happen. And at some point of time he felt that it is not possible for him to just come out of that. And he tried to grab a rope or something like that, so that, because he was feeling suffocating in water, and it is not easy, students, to when you don't know that swimming, so it is not easy for you to be in the water. That is why he is not feeling over there, and felt that he is like, or his body is like paralyzed or not moving properly in the water. So what happened, due to that he felt a little bit his situation is like that he is not breathing properly in water. So today we'll start our paragraph from here. I went down, down, endlessly I opened my eyes. Nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. So here what happens, he's saying that I went down, down endlessly. वो नीचे जाता ही जा रहा था आई ओपन माई आइज़, और जब वो नीचे जाता जा रहा था, ही ओपनड अप हिज आइज़, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, और उसे नीचे सिर्फ क्या नज़र आ रहा था, ड्यू टू दैट सनलाइट he felt that the color of the water is like yellow glow, so there is some yellow glow in the water, dark water that one could not see through. और ऐसा उसे लग रहा था जैसे वाटर इतना डार्क है जिसके वजह से कोई इधर उधर नहीं देख सकता. And then sheer stark terror seized me, terror that no understanding. And after that he used to emphasize the size and degree or amount of something here, which is he felt empty on in that situation. Terror seized me, ऐसा लग रहा था जैसे डर ने पूरी तरह उसे अपने काबू में कर लिया है. टेरर नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एंड अकॉर्डिंग टू ऑथर, जो डर है उसमें आप कुछ भी सोचने या समझने की शक्ति में नहीं रहते. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड. टेरर, जब आप डरे हुए होते हो तो आपका खुद पे बिल्कुल भी काबू नहीं होता है, एंड इन दैट सिचुएशन आप कुछ भी समझने के लिए नहीं रहता. हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और वो ये चीज़ें नहीं समझ सकता वो व्यक्ति जिसने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी हो. इट वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर,
So here he's trying, shrieking means he's trying to say something loudly underwater. I was paralyzed underwater. And now he's describing a situation that how stiff or how rigid. Rigid means not flexible. So he's feeling with fear. So he is like under the situation that he's feeling frightened. And due to that fear, he is not able to move in that water. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन. इवन जब वो चिल्ला रहा था, की कोशिश कर रहा था अंडर वाटर, सो इट फील्स लाइक दैट जो सब कुछ वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा है वो सब कुछ जम गया है. ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव. सिर्फ उसे अपनी हार्ट बीट से ऐसा लग रहा था, विच इज़ पाउंडिंग इन माई हेड, लाइक हिटिंग समथिंग हार्ड मैनी टाइम्स एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज. ड्यू टू दैट ही फेल्ट दैट देर इज़ समथिंग अलाइव, कि वो अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है. एंड देन इन द मिडिस्ट ऑफ टेरर came a touch of reason. And in the middle of terror, midst means ये जो डर का पूरा उसके साथ जो होल पूरा चल रहा था, जिसमें वो डरा हुआ था, उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं थी, उसकी बॉडी पे अपना कंट्रोल नहीं था. इन दैट पीरियड ऑफ टाइम द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न. सो टेरर जो है या डर जो है हमेशा आपको एक रीज़न देता है. आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम. जैसे उसने फील करा कि उसके पैरों के नीचे बॉटम टच हो रहा है पूल का, उसे ये याद था कि उसे क्या करना है, जंप करना है. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी. और एट लास्ट उसे अपने नीचे पैरों के नीचे टाइल्स फील होती है. माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम. एंड वो ऐसे कह रहा था, मेरे टोज जो हैं वो ट्राई कर रहे थे कि कैसे ना कैसे वो कहाँ तक पहुँच जाए उस पर्टिकुलर टाइल्स वाले एरिया पे. आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड. हियर ही सेड दैट आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड मीन्स whatever energy, whatever enthusiasm is left in his body, he tried his level best to just overcome with that situation. But the jump made here, students, now we are here. But the jump made no difference. The water was still around me. But उसके इस जंप से कोई डिफरेंस नहीं आया था. कि दैट मीन्स उसने जो जंप किया था इन वाटर, दैट इज़ नॉट वर्किंग फॉर हिम. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी. अब भी उसके चारों तरफ पानी ही पानी था. आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स एंड वाटर विंग्स. और अब वो पानी में ढूंढने लगा. ये सर्चिंग फॉर सम काइंड ऑफ टूल इन वाटर, कि उसे कुछ तो ऐसा मिल जाए सो दैट ही कैन सेव हिज लाइफ. सो ही सर्चिंग फॉर रोप्स, लैडर्स मीन्स स्टेयर्स और सम काइंड ऑफ वाटर विंग्स. नथिंग बट वाटर. बट उसे कुछ भी नहीं मिलता. ओनली द थिंग ही फाइंड आउट इन वाटर इज उसके चारों तरफ वाटर होता है. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब तरफ पानी ही पानी है और पानी के आसपास वो है और कुछ भी नहीं है उसके आसपास. स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी. एंड दिस टाइम दिस एम्प्टी एरिया विच इज़ फुल ऑफ वाटर इस लाइक टेरर जो है, जो डर है, जो उसकी माइंड में जो फियर है वो पूरी तरह और ज़्यादा डीप होता गया. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्ज होते हैं या झटके होते हैं, वैसे ही उसके माइंड में जो डर है वो और ज़्यादा गहरा होता गया. आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट. सो उसकी बॉडी शुक हियर मीन्स शेक. सो उसकी बॉडी शेक होने लग गई. एंड ट्रेम्बल विथ फाइट. वो कांपने लगा डर के मारे. माई आर्म्स वुड नॉट मूव. अब उसके आर्म्स भी मूव नहीं कर रहे थे. माई लेग्स वुड नॉट मूव. उसके लेग्स ने भी काम करना बंद कर दिया था. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर. नथिंग हैपेंड. और जब भी मोस्ट प्रोबेबली पीपल जब मुसीबत में होते हैं, सो दे like to call for their mother. Here similarly happened with Arthur also, कि वो भी मुसीबत में था. So he is just cried for his mother, but nothing happened. But कुछ भी नहीं हो रहा था. Students move on to next page. And then strangely there was light. और तभी एक अजीब सी वहाँ पर लाइट आती है. I was coming out of the awful yellow water. उसे ऐसा लगने लगा जैसे उस ऑफुल वाटर, येलो वाटर सिचुएशन से वो बाहर आ रहा है. दैट ऑफुल मीन्स अनप्लीजेंट सिचुएशन से वो बाहर आ रहा है. एटलीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू. उसे ऐसा लगने लगा कि शायद उसकी आईज़ या नोज़ कुछ तो बाहर आ जाए.
देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और फिर तीसरी बार वो वापस नीचे जाने लगा. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर. वो हवा को लेने की कोशिश करता रहा बट पानी आया. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. जो येलो लाइट है वो अब जाने लगी. द ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स्ड. अब उसने जो एफर्ट करे थे उसके बाद वो रिलैक्स फील कर रहा था. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प. एंड हियर उसको ऐसा लगने लगा देर इज़ अ लिम्प इन हिज लेग टू वॉक विद डिफ़िकल्टी, दैट वो अपने पैरों से डिफ़िकल्टी से वॉक कर पाएगा. जब आप अपना पैर को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा देते हो तो ऐसा उसको फील हो रहा था. एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन. और उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब तरफ उसके ब्रेन में चारों तरफ अंधेरा हो गया. आई वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर. तो उसने ये कहा कि अगर आपको अपने डर पे काबू पाना है तो आपको अपने टेरर पे भी. देर वॉज नो मोर पैनिक, इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल. जब वो पानी के नीचे था तो उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं था. उससे सिर्फ ये था, मतलब दैट मीन्स इन दीज लाइन्स ऑथर इज ट्राई टू कन्वे अ मैसेज कि डर जो है वो आपको मरने से नहीं लगना चाहिए. डर आपको अपने डर पे काबू पाना चाहिए. आप मरने पे काबू नहीं पा सकते. दिस इज़ नाइस टू बी नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज़ नाइस टू बी ड्रोजी. सो हियर वो कह रहा है ऑथर दैट देयर वॉज नो मोर पैनिक. अब ऐसी बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे वो उसको कुछ ऐसा अनकंट्रोलेबल फियर फील हो. नाउ ही इज़ नॉट कम्प्लीटली अवेक. वो ऐसी सिचुएशन में नहीं था जहाँ वो पूरी तरह जगा हुआ था. ही इज़ लाइक इन सम काइंड ऑफ अनकॉन्शियसनेस. टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प. उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे गहरी नींद में सो जाना चाहिए. देयर इज़ नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प. वो जंप कर करके थक चुका है. इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस. ऐसा लग रहा है जैसे वो जेंटली स्पेस में तैर रहा है. टेंडर आर्म्स अराउंड मी. उसके चारों तरफ उसके जो सॉफ्ट आर्म्स लाइक मदर, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. और उसके चारों तरफ प्रकृति के जो आर्म्स हैं या जो टेंडर आर्म्स हैं, सॉफ्ट आर्म्स, वो हैं. एंड ही सेइंग यो दैट देर इज़ नो फियर इन हिज माइंड, देर इज़ ओनली पीसफुलनेस, क्योंकि अब वो अनकॉन्शियसनेस में चला गया है. सो आई मस्ट गो टू स्लीप. उसे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गहरी नींद में जाने वाला हूँ. So student, from here I cross to oblivion. We'll continue our this part of chapter in our next video.